For this one, you should remember that in the classroom, that is on Wednesday, we have seen this equation. Can you see the screen, please? क्या आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है बेटी? बागे मुशीर मेरा तो on the that day we have seen this equation. Y is equals to 4/3 WL cube upon 5 R raised to 4 YB or etc. If you go back to this equation, तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी कि y is equals to W upon YIG into L cube upon 3, or you can write this equation YB. What was this YB? Can you tell me? This was the depression in the cantilever when its weight is neglected. बराबर है? याद आ गया उस दिन का, बूथ के दिन का? यस नो बोलते रहना मुशीर, खाली ऑन करके, बॉयज खास तौर पे। जी सर। तो हमने उस दिन देखे थे कि कैंटिलीवर जो ऐसा रहता, उसको अगर नीचे झुकाने के बाद जो डिप्रेशन आता, वो डिप्रेशन कितना है? इट इज YIB is equals to WL cube upon 3 YIG, where W it is the weight of the cantilever, W is the weight attached, Y is the Young's modulus, IG is the geometrical moment of inertia, L cube is the length of the cantilever, and 3 it is a constant, no doubt. So this is the formula. Then we have seen two different cases when the cantilever is circular or when the cantilever is rectangular. ये दो cases हमने देखे थे. Am I correct? Now after having seen this one, the next article that we have to see, the considering the weight of the cantilever. उस दिन क्या देखे थे जरा मुशीर मुझे बताइए? उस दिन हमने देखे थे कि कैंटिलीवर के एक हिस्सा फिक्स है, दूसरे हिस्से पे वजन लगा है तो वो झुकता, यानी कि इस तरह होता, डिप्रेशन बोलते जिसको। है मैं करेक्ट? यस। लेकिन ये डिप्रेशन के पीछे हमने क्या बोले थे कि इसको नीचे झुकाने में, फॉर द डिप्रेशन ऑफ दिस पोर्शन फ्रॉम B to B डैश ओनली द वेट अटैच, जो W वेट लगाए थे वही जिम्मेदार है। दैट मीन्स द डिप्रेशन in the beam or the bending in the beam is perfectly takes place due to the weight attached, and this time we have neglected the weight of the cantilever, this one. But we know that in the universe that there is not a single thing is appearing which does not have its weight. कोई भी कायनात में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको वेट नहीं है, सबको वेट रहता। तो अब यहाँ क्या समझ में आई बात कि let us consider that this is a cantilever. Let us consider that this is a cantilever. One end of the cantilever is fixed with the help of the rigid support. Small here is the length of the cantilever. Are you getting please? Just जिनके पास से आवाजें आ रही हैं वो अपना माइक स्विच ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। जो बिल्कुल अकेले में बैठे हैं उतना ही एक माइक ऑन रख के यस या नो मुझे बोलते रहिए। मुशीर, आर यू गेटिंग मी प्लीज बेटा? जी सर। या सो यू कैन सी दैट AB it is the cantilever, this much is the length of the cantilever, small L, isn't it? Are you getting me please? Now to the end B some weight W is attached. Under the action of the weight W, the B comes to B dash, and this much depression delta YB is taking place. Getting? मुशीर यस नो बोलते रहिए, जिनके पास आवाज नहीं उन्हें यस नो बोलते रहना। मुझे ऑनलाइन याद रखिए, जिसके जो एकांत में बैठे हैं, जिसके पास बैक साउंड नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं पूछूं यस गेटिंग आ रही है बात समझ में, तो यस नो नो ऐसा यस बोलते रहना, ठीक है जी सर। ऑनलाइन में करना होगा। तो ये समझ में आ रही बात कि जब वजन लगाए तो बी बी डैश को आया, इतना जो हुआ ये क्या है जी? ये जो झुका हुआ है इसको क्या बोल से पुकारे अपन ने? YB यानी कि डिप्रेशन। है मैं करेक्ट? यस सर। ये YB जो डिप्रेशन हुआ, इसके वास्ते पिछले केस में क्या बोले थे कि काय की वजह से हुआ ये इतना डिप्रेशन? वेट वजन लगाने की वजह से, है क्या नहीं?
यानी कि लगाए हुए वजन ने बी को बी डैश पे लाया, यानी कि द वेट ऑफ द कैंटिलीवर was only responsible in depressing the portion B from B to B dash. But we know that only the application of weight W is not alone responsible, but the weight W plus weight of the cantilever W1, both are these are responsible in depressing the beam from B to बी डैश बी डैश। देयरफॉर पिछले आर्टिकल में खाली अब हमको क्या करने का कि ये जो नीचे आया, मिसाल के तौर पे फर्ज करोगे नहीं कितने से नीचे आया होगा, समझो 10 सेंटीमीटर से नीचे झुका होगा, तो इसके 10 सेंटीमीटर नीचे झुकने में 8 सेंटीमीटर ये लगाए हुए वजन की वजह से झुका और 2 सेंटीमीटर इन्हें काय की वजह से झुका, खुद इसके वजन ने। ये कैसा कंफर्म करे? उस दिन मैं आपको 2-2 मरतबा मिसाल बता रहा था कि ये कैंटिलीवर अगर लकड़ी का है और यहाँ पे वजन आपने 50 ग्राम लगाए तो कितना नीचे झुकता है इन्हें समझो 10 सेंटीमीटर, बराबर है। लेकिन जी वो सर। अगर समझो वैसा एरिया का वैसे जो है तो उतना मोटा उतना लंबा यहाँ लोहे की अगर कैंटिलीवर लगाए और फिर 50 ग्राम आपने वजन लगाए तो इन्हें भी 10 सेंटीमीटर नीचे झुकता क्या जी? नहीं सर। कम झुकता। क्यों? कि उसका खुद का अपना वजन भी है। तो बात ये समझ में आई कि कैंटिलीवर नीचे झुकाने में, नीचे डिप्रेस करने में, यानी कि फॉर द डिप्रेशन टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, two different weights are responsible. One is the weight of the cantilever W1, secondly the weight which is attached, यानी कि नो डाउट लगाया हुआ वजन ही उसको नीचे झुकेगा लेकिन साथ में उसका वजन भी रहेगा। ये दोनों मिलके जो है तो कैंटिलीवर को बी से नीचे लेकर आएंगे। कहां पर? बी डैश। बी डैश। तो फिर अब हमको क्या करने का? पिछले आर्टिकल में एक और चीज ऐड करने का। पिछले आर्टिकल में हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाले थे, किसकी वजह से? लगाई हुई वजन की वजह से, W into L minus X। आता याद? मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द वेट W attached is we have obtained W into length of the portion for which it is acting, W into L minus X। बराबर है क्या? Yes. वो तो रहेंगी। अब और कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा यहाँ? मोमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द वेट ऑफ कैंटिलीवर L माइनस एक्स, वेट का L माइनस एक्स जो सेक्शन है उसके वजन की वजह से भी मोमेंट ऑफ फोर्स होगी। लिहाजा हमको दो मोमेंट ऑफ फोर्स लगेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द वेट अटैच प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द किसकी वेट? इटसेल्फ, वेट ऑफ कैंटिलीवर। समझ में आ गया? Yes. तो जी अब सर। फर्स्ट कीजिए, लेट अस कंसीडर दैट देयर इज ए कैंटिलीवर having the length small l. One end of the cantilever is fixed with the help of rigid support, while to the other end B weight W is attached. Are you getting please the screen? Yes. Let us consider a small section PX which is at a distance of x from the fixed axis. Therefore यहाँ से यहाँ तक का आवाज रख करो हो गया, टोटल कैपिटल L है, P से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? L minus X। गेटिंग करेक्ट है? यस सर। चले आगे। अब जब B के ऊपर वजन लगाए तो B कहाँ आया? B डैश को आया। बी डैश पर। वैसे ये छोटा सेगमेंट PQ झुक के कहाँ आया? नीचे आया, बराबर है? Yes. लास्ट टाइम के जैसा। इन्हें टोटल YB से झुका होगा, लेकिन इन्हें थोड़ी छोटे वेट डेल्टा से झुका, ऐसा बोलेंगे आपको। ये हिस्सा नीचे आ गया। अब यहाँ इसको नीचे लेके आने में दो मोमेंट ऑफ फोर्स है, एक तो इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स लगाए हुए वजन की, और अपन फर्ज करेंगे कि टोटल कैंटिलीवर की वेट कितनी है, समझो W1। ठीक है? जी सर। गेटिंग वेट लगाया हुआ कैसे डिनोट कर रहे हैं? लगाया हुआ वेट 50 ग्राम 100 ग्राम कैसे डिनोट कर रहे हैं? W से। और कैंटिलीवर का वेट कितना है फर्ज करेंगे अपन? W1। तो कंसीडर द स्मॉल सेक्शन एट P, इट विल बी डिप्रेस सपोज बाय, यानी कि छोटा PQ उन्हें कितने से डिप्रेस होगा? सपोज इट इज डिप्रेस बाय सम स्मॉल y। कब इन्हें डिप्रेस होगा? कब नीचे झुकेगा? कितनी वैल्यू से? y से। जब हम B के ऊपर क्या लगेंगे? वेट वेट W। लगेंगे। तो जब B डैश को आएगा तो छोटा कितना है? PQ, स्मॉल सेगमेंट PQ, इट विल बी आल्सो डिप्रेस थ्रू सम स्मॉल y।
when it is loaded with the weight W at the free end and B of the cantilever. यहाँ पर अब दो कुव्वतें काम करेंगी. Here is the additional force F also added to the depression moment. पहले केस में खाली एक ही फोर्स काम कर रही थी, यहाँ पे एक और एडिशनल फोर्स काम करेगी. वो किसकी रहेंगी? कैंटिलीवर के वेट की. पहले केस में क्या हुआ था? खाली एक ही फोर्स काम कर रही थी, कैपिटल एफ. उस वास्ते हमने क्या बोले थे? W इंटू एल माइनस क्या निकाले थे? मोमेंट ऑफ फोर्स निकाले थे. लेकिन यहाँ पर दो कुव्वतें काम करेंगे, एक तो लगाए हुए वजन की फोर्स और एक एडिशनल फोर्स एफ. और ये एडिशनल फोर्स किसका नतीजा रहेंगी? किसकी वजह से रहेंगी? दिस एडिशनल फोर्स एफ इज ड्यू टू द वेट ऑफ कैंटिलीवर. कैंटिलीवर का भी कौन सा है? पूरा कैंटिलीवर नहीं, बल्कि कैंटिलीवर का कौन सा हिस्सा? क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? ये हिस्से की कर रहे हैं. कौन सा हिस्सा? पी क्यू वाला, जो कितने से नीचे झुका? वाई, स्मॉल वाई. तो इसको नीचे झुकाने में, इसको वाई से नीचे झुकाने में इसकी भी मोमेंट ऑफ फोर्स है. और कितने हिस्से का वजन? पूरे कैंटिलीवर का वजन नहीं, बल्कि कितने हिस्से का वजन? इतना वाला इतना हिस्सा कितना है? L minus 6. L minus 6. So therefore the force F, additional force F, which is acting on that one, it is due to the weight of section of cantilever L minus X. L minus X which is acting at the middle. कहाँ इतना वेट कहाँ पर काम करता? ये वेट कहाँ काम करता? L minus X जब नीचे आता है तो यहाँ काम करता है, इसके मिडल में. तो इसका मिडल कहाँ पे? टोटल लेंथ कितनी है इसकी? कितने हिस्से की? L minus 6. और इसका मिडल कहाँ हुआ? L minus x divided by 2. So therefore the force F is due to the weight of section of cantilever L minus x and it is acting at the middle point. लिहाजा ये perpendicular length कितनी हो गई? Perpendicular distance L minus x by 2. Therefore weight per unit length of the cantilever कितना लेंगे हम? कैंटिलीवर का वेट कितना फर्ज करे थे? W1. कैंटिलीवर का वेट हमने कंसीडर किया था W1. Am I correct? Yes. लिहाजा वेट पर यूनिट लेंथ कितना होगा? W1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ L. टोटल लेंथ इज L. टोटल लेंथ इज L. L. जस्ट ए मिनट. आर यू गेटिंग मी प्लीज? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. तो वेट, टोटल वेट कितना है? हमने फर्ज करे कैंटिलीवर का W1. टोटल लेंथ कितनी है कैंटिलीवर की जो फर्ज करते हम? W1. नहीं, लेंथ यहाँ से L. तो वेट पर यूनिट लेंथ कितना हुआ? W1 अपॉन L. तो लिहाजा जो एडिशनल फोर्स इतने वजन की वजह से जो लगी, वेट ऑफ द सेक्शन ऑफ द लेंथ L माइनस x कितना होगा? फिर टोटल वेट पर यूनिट लेंथ W अपॉन L. तो L माइनस x हिस्से का वजन कितना रहेगा? वेट ऑफ L माइनस x सेक्शन इट विल बी इक्वल टू W1 into L into L minus x. L minus x. This is equation number 1. Are you getting up to this one? Aishwarya, all of you, even though you are coming first time, but you please try to understand something. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. May I go next, please? चलूं आगे? Yes. तो ये आ गया वेट ऑफ द सेक्शन ऑफ लेंथ L माइनस x. लेकिन ये L माइनस x कहाँ काम कर रहा बोल रहे? मिडल में. Since it acts as L minus x by 2 distance from the point of force F about the P, then moment of force will be given by force into perpendicular distance. Force कितनी है? Force कितनी है? F. और perpendicular distance कितना हुआ यहाँ पर? अब L minus x upon 2. May I correct here? F into L minus x by 2. जी सर. Therefore moment of force can be written as W अपॉन L. W ये किसके बारे में चल रहा? कैंटिलीवर के वजन के. यानी कि कैंटिलीवर का भी कौन सा वजन? कैंटिलीवर के L माइनस x सेक्शन का वजन. उसकी मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी हुई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना है? F बोले तो कितना?
W1 W1 अपॉन upon length. L x, minus x. और ये अपना ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L minus L x L by, minus minus 2. तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? W1 जैसा कि वैसा, ये 2 और ये 2, ये 2L और L minus x, L minus x, L minus x स्क्वायर बराबर है। जी सर. तो ये इतना टोटल क्या हो गया ये? It is the total force, additional force which is acting due to the weight L, किसका weight? L minus x सेक्शन का weight, बराबर है। तो लिहाजा जी मोमेंट सर. ऑफ फोर्स कितनी बनी? W1, W1 क्या है जी? वेट ऑफ कैंटिलीवर। L minus x क्या है? Length. Divided by 2 perpendicular distance due to the L minus x सेक्शन जब B नीचे से उठ के नीचे आया, बराबर है। जी सर. तो नीचे झुकाने में ये एक कार्य मद है या इसका भी हिस्सा है, इन्हें भी नीचे झुकाने में जिम्मेदार है। और कौन झुकाता नीचे? तीसरा Weight. वेट। तो उसकी मोमेंट ऑफ फोर्स तो उस दिन में निकाले थे, कितनी थी मोमेंट ऑफ वेट? W, P is equals to W into L minus x. बराबर है। लिहाजा इन्हें और इन्हें ये दोनों मिलके क्या करते? कैंटिलीवर को खींचते, यानी कि डिप्रेस करते, यानी कि दूसरे अल्फाज में बोले सही वर्ड में तो इन द डिप्रेशन ऑफ द कैंटिलीवर एंड पर्टिकुलरली हियर इन दिस केस इन द डिप्रेशन ऑफ द स्मॉल सेक्शन PQ from PQ to P dash Q dash through some small y, the total depression moment about the point P is due to the moment of the force F plus moment of the force W, बराबर है। यानी कि L minus x सेक्शन का वजन जमा लगाए हुए वेट का वजन, ये दोनों मिलके PQ कहां लेके आते? नीचे P dash Q dash को लेकर आते हैं। मैं करेक्ट? जी सर. तो टोटल डिप्रेशन को मैं ऐसा लिखूं क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स F प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स W। Yes. मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी है? W1 L minus x square upon 12. हाँ, और इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी है? ऐड करो दोनों W को, L minus x. करो दोनों को ऐड। आ गए इक्वेशन नंबर 4 तक समझ में? Yes. जी सर. चलूं आगे। लिहाजा लेकिन ये टोटल मोमेंट किसके बराबर रहती? बोले इक्विलिब्रियम। फिर आगे हम पिछले आर्टिकल के जैसा, ये जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जो लगी PQ पे, ये किसके बराबर रहना? इसके अंदर इक्विलिब्रियम में द टोटल डिप्रेशन मोमेंट इट इज काउंटर बैलेंस बाय, क्या करती है? ये टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बेंडिंग करती है। लिहाजा इसकी डिप्रेशन मोमेंट किसके बराबर रहना? Bending moment. तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या है जो निकाले अपन उस दिन? YIG अपॉन IIG upon R. तो लिहाजा जो इक्वेशन नंबर 4 के पीछे ये, इसको मैं YIG अपॉन R के मसावी नहीं कर सकता क्या जी? कर कर सकते सकते हैं. That means the total depression moment which is acting of the P, it is equal to the bending moment YIG upon R. Therefore, I will equate the equation number 4 with YIG upon R. So this is equation number 5 has come. Am I correct? Yes. लेकिन यहाँ पे Y क्या है? फिर एक बार मुझे बोल दीजिए Y। Young's modulus. IG Geometrical moment of inertia. R Radius of cantilever. Curvature. Curvature. इसका फार्मूला निकाले थे उस दिन 1 upon R is equal to d2y by dx square. Am I correct? Yes. जी सर. So now I will put the value of R like this in this equation number 5 और ये R इधर ले लेते हैं तो YIG ये R डिनोमिनेटर में है और इसकी कीमत क्या है? d2y by dx स्क्वायर। तो ऐसा होगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड ऐसी बनेगी क्या? YIG into d2y by dx square. Am I correct? Yes. Can we get in this way please? जी सर. Yes. बाकी का बचा हुआ as it is. Can you see this mathematical equation? Can you getting please? Yes, sir. तो फिर लिहाजा इसको d2y by dx स्क्वायर को ये YIG इधर नीचे ले लूं लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो W1 L minus x स्क्वायर अपॉन 2L और ये इधर से आया हुआ YIG बराबर है क्या? प्लस ये YIG इधर भी आएगा W into L minus x और ये नीचे अपॉन YIG। Am I correct? Can you understand equation number 6 please? Please tell me yes or no. जी सर. चलिए, क्या इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब? तो अब ये इसका अब अपने को क्या होना? फिर वही प्रोसीजर क्या होना मेरे को?
अपने को d2y by dx स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, dy by dx चाहिए क्या? नहीं, क्या चाहिए? y, Y, क्या है ये y? छोटे pq में हुआ डिप्रेशन है, Depression. बराबर है? जी सर. So now in order to obtain the y, what I have to do with this equation number 6? Integration. इंटीग्रेशन. पहला इंटीग्रेशन लिए d2y by dx स्क्वायर का dy by dx हुआ, yes, ये पूरा लेफ्ट राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन में गई, लेकिन इंटीग्रेशन में ये पूरा हिस्सा कॉमन है, यानी सॉरी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, बराबर है? खाली किसका जी सर. इंटीग्रेशन निकलेगा? L L minus x minus square. x, अच्छा, L माइनस एक्स का अगर आपने ब्रैकेट खोले तो क्या आता है जी? L माइनस एक्स का ब्रैकेट a माइनस बी स्क्वायर का क्या है फैलाव? a स्क्वायर प्लस L बी square स्क्वायर in- माइनस 2ab, बराबर है क्या? जी yes, सर. तो वो हिसाब से अगर इसका देखे तो ये होगा L स्क्वायर Minus LX square माइन plus प्लस minus, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx. Am I हाँ. correct? yes, जी सर. Can you understand this one? yes, sir, तो वैसी सूरत में अब अपने को जब इसका निकालेंगे तो L स्क्वायर dx, तो L स्क्वायर जैसा कि वैसा dx का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन x, बराबर है क्या? जी सर. उसके बाद x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x cube minus x cube 3. by x cube by 3. x क्यूब बाय 3, बराबर है? जी सर. अच्छा, दूसरी टर्म क्या रह गई थी? माइनस 2xl था ना वो, हाँ. तो 2xl का क्या आएगा? 2 जैसा कि वैसा, l जैसा कि वैसा, x का क्या होगा डेरिवेटिव? इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर l है क्या? Yes. समझ में आ गया ये इंटीग्रेशन? जी सर. Yes. प्लस दूसरी टर्म में ये पूरा के पूरा constant, बाहर, इसका डेरिवेटिव ये भी क्या होगा? ये स्क्वायर तो नहीं है, यल का इंटीग्रेशन ये ऐसा है ना, यल dx, क्या निकलेगा इसका इंटीग्रेशन? यल इंटू dx का इंटीग्रेशन x, x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x cube by 3, क्यूब का ही क्यूब, एक ही है ना ये, x square by 2, प्लस दिस वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बराबर है? yes, आर यू गेटिंग प्लीज? समझ जी में आ सर. गया इक्वेशन नंबर 7? जी sir, चलूं आगे? मे आई गो अहेड प्लीज? यस सर. फिर ये k की कीमत निकालने के बाद से dy by dx इज इक्वल टू 0, अगर डिप्रेशन ही नहीं है तो फिर x 0 हो जाएगा, लिहाजा k की कीमत 0 आ गई. ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 में k1 0 हुआ तो इक्वेशन नंबर 7 ऐसी बन गई, dy by dx इज इक्वल टू w1 2y igl l स्क्वायर x माइनस l स्क्वायर. एम ए करेक्ट? यस सर. लेकिन अभी अपना काम हुआ क्या? अपने को y मिला क्या? नहीं मिला सर. फिर क्या करना है और एक बार? इंटीग्रेशन. यस, फिर एक बार इंटीग्रेशन करें, y का क्या? dy by dx क्या हो गया? y, दिस वन इज एज इट इज, खाली इसका इंटीग्रेशन. एम ए करेक्ट? यस सर. Yes. प्लस दिस वन इज आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन, इसका इंटीग्रेशन खाली किसका? lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. 2. क्या होगा इंटीग्रेशन? ये तो बाहर है, यल स्क्वायर dx का यल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बराबर है क्या? जी सर. माइनस ये यल जैसा कि वैसा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, है मैं करेक्ट? जी सर. प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 तिया 12, बराबर है क्या? जी सर. प्लस y अपॉन आई जी, ये w अपॉन वाई आई जी बराबर यल एक्स dx का, यल जैसा कि वैसा x का इंटीग्रेशन Alex. x square by 2. 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का ये 1 अपॉन 2 जैसा कैसा एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ का 3 दूनी 6. बराबर है, प्लस k2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फिर एक बार बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करें कि भाई डिप्रेशन ही नहीं है y,
तो फिर x इज इक्वल टू x 0 हो जाएगा, k2 0 हो जाएगा, लिहाजा ये 0 होगा। ये इक्वेशन नंबर 9 को k2 की कीमत 0 लिख के डायरेक्ट ऐसा लिखूं? जी सर। काय की इक्वेशन है 10? वाई y क्या था बोलिए मुझे प्लीज? डिप्रेशन था सर। किसके अंदर? एलेक्स L माइनस है, यानी छोटे पोर्शन PQ के वास्ते। हाँ लेकिन हमारा कैंटिलीवर खाली PQ है क्या? नहीं सर, पूरा हमारा एल माइनस कैंटिलीवर एक्स, कितना है? पूरा एल माइनस एक्स। पूरा x है, पूरा L है, लिहाजा जहां जहां भी x है वहां पर क्या रखूं मैं? एल रखे। ये इक्वेशन में जहां जहां x दिख रहा है क्या? ये x x x x x क्या रखूं मैं यहाँ? एल L। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? W1 अपॉन 2YIGL L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। x के जगह क्या रखने का? एल तो L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस L इंटू L क्यूब अपॉन 3 प्लस L रेज़ टू 4 अपॉन 12 प्लस W अपॉन YIGL L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस L क्यूब अपॉन 6 बराबर है क्या? जी सर। नास सर। बराबर है। यस सर। फिर इसको ऐसा, अब ऐसा करूं, बराबर आ गया ये L। तो पहले L क्यूब और यहाँ पे कितना था L? एल स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आया? एल स्क्वायर। तो L स्क्वायर एल L फोर रेज़ टू 4 माइनस डिवाइडेड बाय 2 2 माइनस यहाँ क्या, यहाँ कितना आया? L क्यूब और ये L4, फिर ये क्या हो गया? और L क्यूब और L क्या हो गया? एक L यहाँ है, 3 L एल यहाँ फोर है, होगा सर, वो एल फोर। L4 यस करेक्ट, L4 बाय 3 प्लस इसके एल नीचे फोर बाय फिर 12। L4 बाय 4। समझ में आ गई बात सबके? जी सर। नास। यस सर। So this equation, can you understand how this has come? जी सर। Now please take this LCM। क्या LCM आएगा यहाँ? 12/4, लिहाजा W1 अपॉन 2YIG। अच्छा मेरे को ये बोलो यहाँ से ये L क्यूब अपॉन 4 आएगा क्या? ये समझ सकते हैं आप? ये देखो यहाँ से L4 कॉमन निकल के क्या आया था? ये 4, लेकिन ये L और यहाँ का एक L कट गया। यहाँ कितना था डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में L4 था और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में एक L था, तो ये एक L कट गया, तो कितने L बचे यहाँ? 1 तो कितने हो गए? 3 सॉरी 3 L क्यूब अपॉन 4 बराबर है क्या ये? जी सर। प्लस ये टर्म में क्या निकला? 3 लिए यहाँ पे LCM, यहाँ 3 लिए ना? सर ये बैकग्राउंड में आवाज आ रही सर। बराबर है क्या? और थोड़ा लेक्चर के वक्त साइड में बैठना जहां बैक साउंड नहीं आते। कैन यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन प्लीज? इनका माइक चालू है वो बंद करें प्लीज। कैन यू गेटिंग नाउ दिस इक्वेशन? मुशीर जी सर। ये बराबर है फिर YB, ये बराबर है YB। जी सर। तो L क्यूब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि L क्यूब अपॉन 3YGW प्लस 3W1 अपॉन 8। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकल? नाज बोलिए। जिनके पास बैक साउंड नहीं है वो बोलिए। शबीनाज आपके पास नहीं है बैक साउंड, ओपन कीजिए माइक। जी सर। बराबर है ये? समझ में आ रहा है ये कैसा आया? तो यस। नहीं समझाऊंगा तो बोलो अभी। समझा। ये 8 कैसा आया बोलते हैं आप? 4 को मल्टीप्लाई करें सर कांस्टेंट से। 4 दूनी 8 ये आ गया। तो ये W1 L क्यूब जैसा कैसा 4 दूनी 8 YIG, ये यहाँ W जैसा कैसा Y जैसा कैसा IG जैसा क्या L क्यूब अपॉन 3। यहाँ से कॉमन क्या निकाले अपन ने? L क्यूब अपॉन 3 YIG कॉमन निकाले। L क्यूब ठीक है, डिवाइडेड बाय
3yg 3yig कॉमन IG निकाले, तो यहाँ से तो क्या बचा खाली, जब पूरा के पूरा इतना कॉमन निकाले तो w w, और इधर से क्या बचा ये, क्योंकि 3 निकाले तो 3 के ऊपर W1 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3w1 अपॉन 8 तो इतना आपने क्या निकाले यहाँ से कॉमन निकाले, लिहाजा ब्रैकेट टोटल डिप्रेशन कितना हुआ इतना। यहाँ पर w क्या है, लगाया हुआ वजन, w1 क्या है, खुद का वजन सब कैंटिलीवर का वजन। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते कि द डिप्रेशन इन द कैंटिलीवर व्हेन इट वेस्ट इज considered is nothing but it is 3w1 is called as the effective weight of the cantilever, and in the calculation maximum depression of the cantilever can be obtained। समझ में आ गई कि बात आपके? जी सर। चलो आगे, एक अभी तक अपन ने कितने केस देखे कैंटिलीवर के? 2। क्या था पहले केस में, वेट कंसीडर नहीं कर रही थी नहीं करे, दूसरे में क्या करे, वेट कंसीडर करे, तो कौन सी इक्वेशन आ गई, ये बराबर है। यानी कि जब वेट कंसीडर करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि टोटल डिप्रेशन किसके कितना है, लगाया हुआ वजन जमा उसके वजन का 1/8, बोल सकते क्या ऐसा? जी सर। यदि डिप्रेशन इन द कैंटिलीवर व्हेन इट वेट इज कंसीडर्ड इज इक्वल टू द वेट W अटैच प्लस 3/8 वेट ऑफ कैंटिलीवर, एम आई करेक्ट? जी सर। अच्छा, ये दोनों केसेस में एक हिस्सा फिक्स रखे थे और वजन कहाँ लगाए थे? दूसरे हिस्से पे। अब क्या करते हैं, तीसरे और लास्ट हिस्से में दोनों हिस्से फिक्स कर लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, इन्हें अब कैंटिलीवर है क्या जी? दोनों हिस्से फिक्स कर दिए और वजन बीच में लगाए, नहीं रहा अब सर। कैंटिलीवर नहीं, अब इसको क्या नाम से पुकारना आपने? बीम। बीम। तो डिप्रेशन ऑफ बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड लोडेड एट द सेंटर होगा क्या ऐसा? ये देखिए, ए बी एक बीम है, इसकी लेंथ समझो स्मॉल एल या कैपिटल एल फर्ज कर लीजिए, इसके दो सिरों पर ए सिरा और बी सिरे पर ऐसा कील लगा के, ऐसा नाइफ एज लगा के क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और वजन कहाँ लगाए? मिडल में। सेंटर। कितना वजन लगाए? W। तो ऐसा बनेगा क्या, दिखता क्या ऐसा? बनेगा सर, बेंड होगा ना, बेंड हो जाएगा, और जब बेंड हुआ तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ अगर कैपिटल ईयर होंगी तो अब ऐसा अगर हम देखें तो ज्योमेट्री ऐसी बनेगी, शक्ल ऐसी बनेगी उसकी, हमें करेक्ट? जी सर। तो आधा हिस्सा दिखेगा, इतने हिस्से की लेंथ रहेंगी L/2, इधर के हिस्से की लेंथ रहेंगी L/2, बराबर है क्या? अच्छा, अपने वजन कहाँ लगाए? सेंटर। कितना लगाए? W लगाए। लेकिन अगर अब अपन ओवरऑल जब W लगाने के बाद जब सेंटर में नीचे झुकेगा, फर्ज करो कि इन्हें डेल्टा से नीचे झुका, तो अगर अपन आप इतना हिस्सा देखे इधर का तो ऐसा लग, अच्छा ये वजन अपन ने कहाँ लगाए थे, बीच में। लेकिन अगर आप अब देखें तो कैंटिलीवर या आपका बीम जो है दो इन्वर्टेड कैंटिलीवर में तकसीम हुआ दिखता, बराबर है? जी सर। एक कैंटिलीवर, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड उल्टे कैंटिलीवर दिखते, ऐसा लगता कि बी पे वजन लगाए, कितना? W/2, क्योंकि वजन बढ़ गया ना। जी सर। टोटल लगाए थे W, आधा गया बी के तरफ, आधा गया ए के तरफ, तो ऐसा लगता कि ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, वो भी दो इन्वर्टेड कैंटिलीवर बन गए। और कैंटिलीवर की क्या कंडीशन है, एक फिक्स हिस्सा रहना फ्री सर, रहना, दूसरा हिस्सा वेट रहना सर। तो लिहाजा क्या हो गया, ये हिस्सा फिक्स दिख रहा और दूसरा हिस्सा वजन वेट वाला है। दिख रहा, तो दो कैंटिलीवर बन गए, बराबर है क्या? हाँ। और ये कैंटिलीवर के अंदर डिप्रेशन दिख रहा, वैसे इधर ये कैंटिलीवर दिख रहा, इतना उसके अंदर डिप्रेशन, तो लिहाजा ये डिप्रेशन मिला के टोटल इतना डिप्रेशन होगा क्या नहीं? होगा सर। तो अपना अब ये आर्टिकल में काम क्या है कि जब बीम को सेंटर में जब लोड करते तो उसका डिप्रेशन निकालना है। Our intention in this article is to obtain the expression for the depression of beam when it is fixed at end and loaded at the center. तो इसका वेट W it is get divided into two half, W/2 at A and W/2 at 2। W/2 कहाँ गया? ए पे। W/2 कहाँ गया? बी। तो लिहाजा अब ऐसा लगता है कि ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक बना C-A
क्योंकि ये सी कहाँ आया था, डूब के C dash तो एक कैंटिलीवर क्या बना, सी डैश A ए, और दूसरा कैंटिलीवर क्या बना, C dash B तो ये दोनों में से अपन क्या करेंगे, किसी एक कैंटिलीवर को कंसीडर करके, जो कि इन्वर्टेड कैंटिलीवर है, इन्वर्टेड उल्टा, अपना कैंटिलीवर कैसा रहता है ऐसा, लेकिन ये दिख रहा कैसा, ऐसा। ऐसा तो एक्चुअल में ये यहाँ जितना डिप्रेशन के बजाय ऑपरेशन हुआ यहाँ पे, है कि नहीं, झुकाव के बजाय उठाव हुआ, लेकिन एक्चुअल में अगर उल्टा करके देखे तो ये उठाव इज इक्वल टू झुकाव, बराबर है क्या। तो इसके अंदर जितना डिप्रेशन, इसके अंदर जितना ऑपरेशन हुआ, इतना ऑपरेशन किसके अंदर हुआ, इसके अंदर। अरे दोनों ये दोनों के अंदर जितना जितना ऑपरेशन हुआ उतना डिप्रेशन किसके अंदर हुआ, C to C dash बराबर है। जी सर। तो लिहाजा one has become C dash A, another becomes C dash B, and therefore we have to prove that depression of weightless cantilever which is loaded at the free end। अब लिहाजा हमको मालूम है कि ऐसा अगर हुआ वेट, तो हमने क्या इक्वेशन निकाले थे उस दिन, क्या वेटलेस कैंटिलीवर के, और W/L3/3 निकाले ना। जी सर। ठीक है, इन केस ऑफ W/2, यहाँ लेकिन वेट वहां WL³ था, W बोले तो क्या, लोड। लोड। तो यहाँ लोड कितना है एक कैंटिलीवर पे, W/2। लेंथ कितनी है यहाँ, L/2। लिहाजा ये WL³/3YIG को ऐसा लिखूं क्या, W/2 3YIG, ये L/2³ ये 3 तो है ना, 3YIG का 3, लिहाजा ये इक्वेशन ऐसी होंगी क्या, W ये L², ये ऊपर गया, ये L³, इसकी वजह से ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, नीचे आ गया 12 चौक 48, बराबर है क्या। जी सर। Yes. तो WL³/48YIG होगा ना। Yes, sir. ये क्या है जी, ये Y क्या, Y मतलब Youngest models. वो यंग्स मॉड्यूलस नहीं, स्मॉल Force y है है वो, सर, उस पे डिप्रेशन। cantilever पे इसके हुआ अंदर C डैश B क्या है, ये एक कैंटिलीवर, Cantilever। डिप्रेशन किसके अंदर होगा, C dash A और वो दोनों के अंदर जितना हुआ उतना एक्चुअल में इतना झुकाव किसके अंदर हुआ, पूरे W कैंटिलीवर में में, वन सर। हाँ पूरे पूरे cantilever कैंटिलीवर में, जो कि कहाँ झुका, कौन से साइड में, सेंटर में। सेंटर में। तो सेम थिंग वी विल राइट, where y is the Young's modulus here of the material, Ig is the geometrical moment of inertia। लिहाजा geometrical moment of inertia का रेक्टेंगुलर रहा तो क्या, सर्कुलर रहा तो क्या बोल के अपन निकाल सकते हैं, हमें करेक्ट। जी सर। BdQ/2L निकाले, दिस इज इक्वेशन। सर्कुलर है तो πr/4/2, दिस इज इक्वेशन। कैन यू अंडरस्टैंड प्लीज, समझ में आ गया आपके। जी सर। ये काय की एक्सप्रेशन है, ये डिप्रेशन ऑफ कैंटिलीवर, डिप्रेशन ऑफ ए बीम व्हेन इट इज लोडेड एट सेंटर एंड फिक्स्ड एट टू साइड। कब, जब इन्हें रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर है तो ये पायर हो स्क्वायर। गए, 3 केसेस हो गए। जी सर। फर्स्ट केस, फिक्स्ड एट वन एंड, लोडेड एट द सेंटर, वेट इज निग्लेक्टेड। Fixed at one end, loaded at the other end, weight is considered। जी सर। And third case is fixed at end, loaded at the सेंटर। center। These are the 3 expressions of the depression of cantilever। This equation are most important to solve the numerical problem। Also अगर आपकी जैसे कि आप बता रहे हैं कि MCQ होने वाली है तो ये फार्मूले पूछता है उन्हें। इसके ऊपर मजीद देखिएगा, YouTube पर वीडियो है, नहीं समझा तो इंडिविजुअल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेरे पास आके पूछ सकते हैं। Am I correct? जी सर। With this one, this second chapter is completed। Anybody wants to ask now? Unmute yourself and tell me how you got। Naz got, please। Naz जी सर। समझा? जी सर। फातिमा, are you getting? Yes, sir. Bushra, Firdaus, Pathan, Ifra, Khanam and all of you have what? सर। तो सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला चैप्टर भी खत्म हो गया, 2 चैप्टर हो गए। ये चैप्टर के MCQs, पहले चैप्टर के MCQ भेजा ना मैंने आपको,
जी ये चैप्टर के एमसीक्यूज और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कल और परसों 2 दिन मैं काय पे डालूंगा आपके ग्रुप पर। कल लेक्चर नहीं होगा क्योंकि टुमारो वी आर हैविंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद अस एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू ऑन द ग्रुप एमसीक्यूज। So I will not take Okay. the direct period like this. ऐसा ऑनलाइन पीरियड नहीं होगा। मेरा कब कब है? पीर मंगल बुध को है ना। जी सर। Yes. पीर के दिन ले लिए, मंगल के दिन कॉन्फ्रेंस रहेगी, बुध के दिन पीरियड लेने के बजाय ऑनलाइन आपको क्या भेज देंगे? MCQs. MCQs and some numerical problem. And inshallah we will take the period later on. आपको जो ऑनलाइन जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? No, sir. So we shall stop here today. Remaining thing we shall see in the next chapter. हम start करेंगे इंशाल्लाह अगले मंडे को। रेस हैंड, किसने रेस हैंड किया? किसी को कुछ बोलना है क्या? ये यहाँ चार्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप अगर कुछ लिखना है तो। आइडिया आ रहा ना ऑनलाइन का? Yes. sir. So we shall stop here today. Inshallah we will meet on next Monday at 10 o'clock. May I start please? जी सर। Thank you for joining me. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर।